students, today we are going to learn chapter 3 EVS. Chapter name is Clothes for Us. Yes, chapter is Clothes for Us. So, children, can you tell me how can clothes protect us? Yes, clothes protect us from heat, cold, wind and rain. Okay, so let's do some new words. Let's do some word fun which I am giving you, which you have to learn and write in your copy. So let's start. Number. So children, let's do some word fun. Okay, word fun. First number is protect. Protect, that means सुरक्षा देना. Clothes protect us from cold, winter or from heat. Okay. Next one is spin. Spin, that means काटना. Spin means घुमाना. When we make clothes by spinning thread. Yes, this is called spin. Third one is skin. What is skin? Yes, in our body upper parts is called the skin. Skin, that means chamra. Yes. Fourth, season. What is the season? Yes, we know all about season like summer, winter. Yes, these are season. Season, that means ritu. Fifth is loom. Loom, that means kardha. Kardha, which we making with the kardha, we can make a cloth. And next one is wave. Wave means bunna. Waving karna, lapetna, wave, that means thread. Next one is thread. Thread, that means dhaga. Yes. So children, let's start this chapter. Clothes for us. Why clothes made for us? Yes, because we wear clothes because clothes will protect us from heat, cold, rain or winds. Yes, हम लोगों को क्लॉथ्स क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि क्लॉथ्स हमें हर चीज़ से सुरक्षा देता है, बचाता है. जैसे कोल्ड से, समर से या फिर रेन होती है उससे. हर टाइम की अलग अलग क्लॉथ्स होती है. So children, can you say, tell me which type of clothes you wear in school? Yes, you wear uniform. And with the help of clothes, we can judge the people who are they. Different clothes for different season. अलग अलग मौसम के अलग अलग कपड़े होते हैं. We wear cotton clothes in summer. समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. They keep us cool. ये समर में जो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं ये हमें कूल रखता है, हमें ठंडक पहुंचाता है. We wear woolen clothes in winter. विंटर में हम वुलन्स क्लॉथ्स पहनते हैं, ये हमें गर्मी देता है. They keep us warm. We wear raincoat when we go out in the rain. जब हम बारिश में बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, हम रेनकोट पहनते हैं. इट कीप्स अस ड्राई. यह हमें सूखा रखता है. बारिश की बूंदे से हमें बचाता है, हमें गीला नहीं होने देता. इन दिस पिक्चर चिल्ड्रन यू कैन सी हियर अ गर्ल वियर मफलर, ग्लव्स, स्वेटर एंड कैप. सो दिस इज विच सीजन इज दिस? यस, दिस इज विंटर सीजन. नेक्स्ट, What are clothes made of? क्लॉथ्स तो हमने समझ लिया, क्लॉथ्स हम पहनते हैं, लेकिन क्लॉथ्स बनता किससे है? अभी हमें वही जानना है. We get clothes from the cotton plants. हम लोगों को क्लॉथ्स कॉटन प्लांट से मिलते हैं. कॉटन ग्रोज इन पॉड्स. कॉटन पॉड्स में बढ़ते हैं. The pods are picked and thread in made from them. पॉड से हम कॉटन निकालते हैं और फिर उसे हम धागा बनाते हैं.
मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। जब हम कॉटन से जब थ्रेड बनाते हैं, धागा बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्पिनिंग कहते हैं, जिसे काटना कहते हैं। स्पिनिंग दैट मीन्स काटना, जो घुमा घुमा के हम इसे काटते हैं। दिस थ्रेड इज़ मेड इनटू क्लॉथ्स ऑन अ लूम। ये जो थ्रेड बनता है वो लूम में बनता है। लूम दैट मीन्स करघा। इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर अ lady using loom and making cloths. Making cloths from thread is called weaving. हम थ्रेड से जो क्लॉथ्स बनाते हैं उसे हम weaving कहते हैं, दैट मीन्स बुनना। See children, see here cotton plants. In this picture you can see here cotton plants, and this is called pod. In pod, cotton grow. And this is the picture of spinning. This lady is spinning from thread, and with the help of loom, this lady is made cloth. This thread is made into cloths on a loom. So this is called weaving. First we have to take a cotton, then after we have to spinning. After spinning we can weave. पहले हम कॉटन निकालते हैं, कॉटन से हम फिर उसका धागा बनाते हैं, फिर धागा से फिर उसके क्लॉथ्स बनते हैं. So this is the process of weaving, making cloths. This thick hair on a ship's body is called wool. Children, you see here a ship is here and the thick hair on his body. This is called wool. This hair is cleaned and turned into a woolen thread. इस हेयर को निकालते हैं इसके बॉडी से, उसके बाद उसे क्लीन करते हैं. क्लीन करने के बाद इसे हम ऊल बनाते हैं, दैट मीन्स ऊन बनाते हैं. ऊल इज यूज टू नीट स्वेटर्स, कैप्स एंड सॉक्स. ऊल से स्वेटर बनते हैं, सॉक्स बनते हैं, कैप्स बनते हैं. इससे हम ऊन से बुन के स्वेटर और क्लॉथ्स बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं, कैप्स बनाते हैं. यस, जो हम अगर शिप के बॉडी से जो ऊल निकालते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होता है, उसके बाद उसका फिर ऊल बनाने के बाद फिर से उसे वेव करते हैं, उसे नीट करते हैं. उसके बाद स्वेटर हमारा रेडी हो जाता है. सो चिल्ड्रन, डू यू नो हाउ कैन वी गेट सिल्क? यस, सो लेट्स सी. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. हम लोगों को सिल्क वॉर्म्स से मिलते हैं. सिल्क इज यूज टू मेक स्क्रैब्स, साड़ीज एंड मैनी अदर थिंग्स. सिल्क से बहुत सारी चीज़ बनते हैं, जैसे स्कार्फ्स बनते हैं, साड़ीज़ बनती हैं और बहुत सारी चीज़ बनते हैं. चिल्ड्रंस, यहाँ आप देख रहे हो सम ऑफ अस वेयर यूनिफॉर्म. हम में से कुछ लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे कि आप भी यूनिफॉर्म पहनते हो स्कूल में. दिस इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म. यू वेयर योर यूनिफॉर्म टू स्कूल. आप अपनी यूनिफॉर्म पहनते हो स्कूल में. वैसे ही सिमिलरली दे आर अदर हु वेयर अ यूनिफॉर्म. ये लोग कुछ अलग हैं जो वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, लाइक डॉक्टर्स, नर्सेज, पीपल इन द पुलिस एंड पोस्टमैन वेयर यूनिफॉर्म्स. डॉक्टर्स के अलग ड्रेसेस होते हैं, नर्सेस के यूनिफॉर्म होते हैं. पीपल जो पुलिस में रहते हैं उनके भी अलग ड्रेसेस होते हैं, जो पोस्टमैन हैं उनके भी अलग ड्रेसेस हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो. पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स. हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, या फिर हमारे देश की बाहर अलग अलग कंट्री के लोग भी होते हैं जो जिनकी ड्रेसेस भी अलग अलग होती हैं. डिफरेंट कंट्री के लोगों के ड्रेसेस से ही हम उनको ड्रेसेस से भी उनको पहचान कर सकते हैं.
So children, look at these people. They are wearing different kinds of clothes. यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग अलग लोग दिख रहे हैं, लेकिन लोग एक ही जैसे हैं लेकिन उनके कपड़े अलग अलग हैं. We must wear clean clothes. We look smart when we wear clean clothes. हम लोगों को हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. साफ़ सुथरे कपड़े पहनने से हम साफ़ लगते हैं. हमेशा हमें क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, हमें साफ़ कपड़े पहनने चाहिए. So let's do some recap. Quick recap. We get cotton from the cotton plants, wool from sheep and silk from silkworms. हम लोग अलग अलग कपड़े किस तरह से हमें मिलते हैं, जैसे कि हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, उल सीप से मिलते हैं और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. वी शुड वेयर क्लीन क्लॉथ्स. हमें हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. ये हमें स्मार्ट बनाते हैं. दे मेक अस लुक स्मार्ट. अगर हम साफ़ कपड़े पहनते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं तो हम बिल्कुल स्मार्ट दिखते हैं. So childrens, thank you. I hope you will learn this chapter twice. This is your work. You have to write word fun in your copy and you will show me. Thank you.